Psychic number 7. What is psychic number 7? Now let's talk about that. Psychic number 7 is anyone born on 7th, 16th and 25th of any month. They are Mulang 7 or you can say psychic number 7. आपने सुना ही होगा कि 7 नंबर वाले जो होते हैं उनकी ये होती है, फेल करते हैं काफ़ी बार, उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, काफ़ी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है and all that. They fail a lot, but let me tell you, failure is the key to your success. Many psychic number 7s are amazing poets, creative artists, thinkers, revolutionaries, arbitrators, reformers, numerologists, psychics, psychologists, occultists. A well guided number 7 can mark massiveness in life, They become unrecognizable. They become extremely wealthy people, extremely fortunate people, and extremely organized people you'll ever meet. They genuinely are religious and spiritualist, but sometimes they can also be an extremist because of their emotions. They have a sense of originality in their approach towards life. उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. केतु है ना, बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड है. उसको इतना प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये करना है, वैसे करेंगे, इस टाइम पे उठेंगे, इस टाइम पे रूटीन फॉलो करेंगे, ये होता नहीं है केतु से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो इनको प्रॉब्लम भी आती है इस चीज़ में. इनका जो लाइफ का जीने का तरीका होता है, परसेप्शन होता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स से भी काफ़ी हटके होता है, विच आई हैव सीन. हियर मी आउट, दे आर मास्टर्स ऑफ inventing things. They can give new updated interpretation of age old values, truth and ritualistic practices. ये इतने नोबल लोग होते हैं कि ये बहुत जल्दी ना मासेस को गेन करते हैं. They have great tendencies to speak well, argue well, and gain the warmth and love of masses because they never do discrimination between rich and poor, king and beggar. They are very cordial people to their subordinates, to their students, to their colleagues, to their family members, everyone. But you have to understand that uncertainty is their speciality. And they are also an idealist and materialist people at the same time. A lot of people will say the spirituality का मतलब है you cannot be materialist. No. अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप इन सब चीज़ों के पीछे भागते ही नहीं हो, तो ये अपने आप ही आती है आपके पास. ये लोग इतने दिल खोल के देते हैं ना, डोनेशन, मनी, चैरिटी, इनके पास खुद आता है. दे डोंट हैव टू रन. They have an over busy mind that activates at night. That's why they also face issue in sleeping. They also are a very restless mind at the same time. Basically, a very hyperactive brain. They love to travel. If you have a child, parents, listen to me. If you have a child, if you have a daughter, son born on 7th, 16th and 25th of any month, please उनको freedom दो. Control करोगे हाथ से निकल जाएंगे. This is the reality because they love traveling. इनको travel करनी चाहिए. जितना solo करे और अच्छी बात है. Let them live life the way they want. They have great acumen for business because वो business dealings अगर foreign related हो बहुत अच्छी चलती. They don't follow any conventional pattern, be it religion, be it ritual, be it spirituality, nothing. ये अपने खुद के बनाते हैं, धारणाएं बनाते हैं. ये नहीं है कि दूसरों की वो जो है disrespect करेंगे, but they make their own. They are very individualistic, freedom and क्या कहते हैं उसको, खुद का नर्चर करने वाला, खुद का इंटरप्रेट करके कैसे लोगों को समाज में वो चीज़ बढ़ानी है, वो बहुत स्पेशलिस्ट इन. एंड दे बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस. जहाँ क्योस होगा कट लेंगे वहाँ पे, बोलेंगे भी नहीं कि मेरे को ये नहीं चाहिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक एक नेगेटिव पॉइंट है बिकॉज दीज पीपल लव पीस. इनकी माइंडसेट में अगर पीस नहीं है, वो उस एरिया में, वो एनवायरनमेंट में, घर में, दे कैन नॉट थ्राइव वेल फॉर लॉन्ग टाइम. 34 का जो एज होगा इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा फॉर अ बेटर. इनके लिए क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी है, एज अ सिंगिंग, डांसिंग, जर्नलिंग, वट एवर जो भी हो सके, बट क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी है. प्रिकॉशंस फॉर साइकिक नंबर 7 इज दैट दे शुड ऑलवेज थिंक अहेड ऑफ द ओपोनेंट. सपोज कोई बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके प्रोस कॉन सब कुछ दिमाग में रख के करनी चाहिए. कोई भी चीज़ को कमिट करने के पहले, कोई भी प्रोजेक्ट को कमिट करने के पहले 10 बार उस चीज़ के ऊपर बैठ के उसके नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, सब चीज़ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. दे शुड नेवर पुश देमसेल्फ टू द कैपेसिटी वेयर दे फील चोक्ड. डे टू डे लाइफ में भी, काम में भी. ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब इनको फ्रीडम दी जाए अपने तरीके से काम करने की. ज़बरदस्ती करते हैं ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस और जेन्युइनली दे बिकम क्रेजी. These people should work independently and not depend on other people. और बहुत ज़्यादा ये जॉब्स में भी ना अच्छा नहीं कर पाते. इनको अपना खुद का कुछ चाहिए कि अगर ये खुद का कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छा जाता है वो चीज़. If you are number 7 woman, please mark my words, you have a tendency to worry a lot. Work on it. This will ruin things for you. These people should not indulge in alcohol, drugs, smoking, drinking, partying regularly. No, not for you. These people have a tendency to face some early struggle, especially mental and professional struggle in terms of early life.
इमोशनल स्ट्रगल्स के साथ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन बाद में देखा गया जब वो अपनी लेसन्स और पैटर्न्स पे काम करते हैं इनकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है, क्योंकि केतु है ना, उसको इतना दिमाग तो है नहीं, वो जो प्यार करता है ना बहुत अलग अनकन्वेंशनल तरीके से करता है। यू हैव एनी पार्टनर विथ नंबर 7, यू विल अंडरस्टैंड कि इनको जल्दी समझना मुश्किल है। इनके अलग अलग तरीके से थॉट पैटर्न्स होते हैं, प्रोसेस होता है, फिलोसफीज होती है अपने लाइफ को जीने की, एथिकल बहुत होते हैं। तो इनके पार्टनर्स को ऐसा लग सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ दे लव यू वेरी इंटेंसली। The way a number 7 experiences love is very unique, out of the box. And these people definitely have some prominent Ketu position in chart. ये आप apply करके देख लेना. Let me know number 7s in the comment if you can relate to it. And yes, if you want me to cover other numbers, please drop it in the comment section.